Very good afternoon, everyone. Very respected CA Sanjeev Kumar Singhal ji, Chairman CMP Committee, CA Prasanna Kumar D, Vice Chairman CMP Committee, our own Central Council member, Chairperson CP Committee of ICI, CA Kemisha Soni ma'am, CA Kirti Joshi ji, Chairman Indore Branch, CA Harsh Firoda ji, immediate past Chairman Indore Branch, CA Samkit Bhandari ji, Vice Chairman Indore Branch, CA Anand Jain ji, Treasurer Indore Branch, and all participants who have joined us from different cities, from different regions, from the nationwide. I, CA Ankush Jain, Secretary Indore Branch, welcomes you all in this 3 days virtual national conference organized by Committee for Members in Practice ICI and hosted by Indore branch of CIRC of ICI. So I am also very pleased to inform you all that first time ever in the history of Indore branch, we are organizing the national conference with the more than 4,000 members. So I congratulate all the managing committee members, Kemisha Soni ma'am, for your kind efforts. And without taking much time, I request C. Kirti Joshi ji, Chairman Indore branch, for his welcome address. Thank you, Ankush ji. Respected CA Kemisha Soni ma'am, Central Council member and Chairman CPN Women Empowerment Committee of ICI. In absentia, CA Sanjeev Kumar Singhal ji, Chairman CMP Committee, CA Prasanna Kumar ji, Vice Chairman of CMP Committee and Central Council member. Respected Harsh Firoda ji, past Chairman Indore Branch. Respected Samkit Bhandari ji, Vice Chairman Indore Branch. Respected Anand Jain ji, Treasurer Indore Branch. Managing Committee members of Indore Branch, seniors in the profession and dear professional colleagues. Good evening. It is my great pleasure and honor to welcome you all on behalf of Indore Branch of CIRC of ICI in this 3 days virtual national conference. I welcome all the eminent speakers also. This is the first national conference in the history of Indore Branch, which is completely conducted on virtual mode. The theme of these 3 days national conference is based on allied laws because knowledge of allied laws like HUF, trust, succession planning, or FCRA helps a chartered accountant to have a good hold on taxation laws also. Indore branch is going to celebrate its golden jubilee year. To make it memorable, we have come up with 50 initiatives to empower branch CA. I would like to share few of the initiatives, which are returnship initiative, in which we tried to mitigate the hurdles of career gap by providing refresher training to female chartered accountants. To maximize the knowledge of the members, we have come up with a one-time registration scheme. During the pandemic, we have arranged 45 oxygen concentrator, food, and we have also formed a COVID task force under the able leadership of Kemisha ma'am. Initiative Mushkil Ki Ghadi Mein Hum Saath Hain, in which we have helped the family members of our beloved deceased member for applying at various institutes and apply for claim. And yet another ongoing initiative by Indore branch is providing training to the college students and commerce graduate so that they can think of become a part of the CA offices and which will certainly beneficial for the CA firm as well. With these words, I again welcome you all and over to you, Ankush ji. Thank you so much, Chairman sir. We all are witness of your efforts for running the Indore branch under the able leadership of CA Kemisha Soni ma'am. Now, as our chief guest, Shri Kailash Vijayvargiya ji will join us in some time. So before that, I request our Central Council member and also today's speaker, CA Kemisha Soni ma'am, to enlighten us on the networking guideline. So over to you, ma'am. Thank you, Ankush ji. Very good evening and greetings, everyone. Chairman Indore branch, I would say very active and dynamic chairman, Kirti ji. Secretary Ankush ji, Vice Chairman Samkit ji, past Chairman Harsh ji, Treasurer Anand ji, and other managing committee members. I can't see that Pankaj ji is not there, but I would like to mention about his name, and also respected participants
In absentia, Sanjeev Singhal ji, Chairman CMP Committee, and Prasanna Kumar, Vice Chairman CMP Committee. And really, dear members, I am indeed very glad to be amongst all of you. And I would like to congratulate Chairman Indore Branch and his entire team for grand success of this conference, that more than 4,000 registrations are there. So that is a compliment to you only, and because we are only organizing team member, I would say, and entire ground level efforts from your side, that is wonderful and excellent. So I would like to congratulate your entire team and our local Indore members also for participating in this event. So I think, Kirti ji, we can start with our technical presentation, and meanwhile, whenever our chief guest join, to just inform me so I can stop myself at that moment. So thank you, and just give me a right for sharing my screen so I can share. Yeah, my screen is visible. Yes, madam. Yes, madam. Thank you. So, dear members, today in brief, I will discuss about past, present, and future about our networking guideline. And just a minute, just a minute. So that is certain new guidelines we have launched in February, and for our capacity building of our members, because we have revised entire networking guideline. History I would like to share about that. Ki first time in 2005 this networking guideline was introduced, and after that in 2011 it was revised. So कह सकते हैं कि 15 साल के बाद अगेन हम लोगों ने उसको पूरा रीडिजाइन करके रिवाइज किया है. एंड जनरली प्रीवियस जो हमारा गाइडलाइन था for the awareness of our all members ki that was not adopted by our firms. I would say that because आज की तारीख में खाली 100 नेटवर्क हमारे इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड है, 100 फर्म्स in at domestic level as on date. So that is something, so many hurdles, obstacles were there in that old guideline. So according that we have revised this new guideline, and जो पिछली guideline में issues थे related to our existing practice, related to new practice, how we can incorporate certain other features also. तो ये जितने भी hurdles थे उसको हम लोगों ने workout किया, meet out किया, and after that हम लोगों ने ये revised guideline issue करी है फरवरी में. सो इवन प्रोसीजर में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि 2020 में हम लोग का फॉर्म कंस्टिट्यूट किया, इसको रिलेटेड ग्रुप कंस्टिट्यूट किया रिलेटेड टू नेटवर्किंग गाइडलाइन, एंड जय छेरा वाज कन्वीनर ऑफ दैट ग्रुप एंड आई वाज देयर एज अ मेंबर. एंड आफ्टर मोर देन 25-30 मीटिंग्स हम लोगों ने करा, मैराथन मीटिंग्स उसको करा. ईच एंड एवरी फैक्ट्स रिलेटेड टू रूल्स, रेगुलेशंस, इम्प्लीमेंटेशंस, उसको हम लोगों ने पूरा फॉर्मुलाइज किया. एंड आफ्टर दैट we have conducted outreach program also, and we have taken views of our members also. And after considering the views what we have received from our members, we have collected that views and incorporated in our guideline. And after that this new revised networking guideline has been introduced. So 9 February 21 से ये revised guideline applicable है. And we have also incorporated certain features related to regulations, related to certain administrative formalities. So we have also service portal also, SSP related, and that particular portal you can get all registrations related requirement, you can get entire guideline related to that, and also what are the formalities related to networking of firms. So that all features are incorporated at our self-service portal.
So first we will discuss that what are the forms of modes of practice are available in present situation. कौन कौन सी प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस दे सकते हैं. ऑफ कोर्स इंडिविजुअल नेम से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप ऑल्सो, LLP ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड, एंड मर्जर फीचर्स आर ऑल्सो देयर. मर्जर वी कैन से दैट कि मतलब यदि आपने वंस मर्जर किया है आपकी फर्म का फॉर एक्सपांशन ऑफ योर प्रैक्टिस, पर आपको यदि सूट नहीं होता है तो मर्जर में ये फैसिलिटी है कि विद इन 5 years यदि आपको नहीं कंटिन्यू करना है तो डीमर्जर का ऑप्शन अवेलेबल है. एंड अगेन यू कैन एज ऑन जो स्टेटस आपकी फर्म का, तो वही स्टेटस अगेन आप आफ्टर डीमर्जर आपको रहेगा, सीनियोरिटी भी वैसे ही काउंट होगी. तो 5 years तक आपकी जो पुराना फर्म जो मर्ज्ड हुई है उसकी आइडेंटिटी वैसी ही रहेगी और इंस्टीट्यूट के उसमें भी जो डेटा में है वो आपका एज इट इज कंस्टिट्यूशन रहेगा. एंड आफ्टर डीमर्जर यू कैन गेट ऑल बेनिफिट जो आपका पहले था. देन नेटवर्किंग फॉर्म, ऑलरेडी ये फीचर्स अवेलेबल है बट सर्टेन अभी जो रिवाइज गाइडलाइन है वी विल डिस्कस. एंड फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ये भी एक फीचर अवेलेबल है ओनली फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज. सो अटेस्ट फंक्शन, ऑडिट, एश्योरेंस, उस फंक्शन के लिए only 4 formats are available either in the name of individual, sole proprietorship, partnership, LLP. तो ये इसके अलावा कोई ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं है. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म AOP के फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. बट फॉर कंसल्टेंसीज एरिया यदि टाइम परमिट करेगा तो वी विल डिस्कस ऑन दैट कंसल्टेंसी एरियाज ऑल्सो. एंड उस फॉर्म में आप लोग अपनी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं. So this is the entire structure of revised guideline. जो हमारा पूरा एक बुकलेट है रिवाइज गाइडलाइन का, उसमें किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया है. प्रीएम्बल्स, जनरली उसका हिस्ट्री, क्यों ये नया गाइडलाइन लाना पड़ा एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट. सेकंड है कि ग्रोथ ऑफ CA फर्म्स के लिए क्यों कंसर्न है कि नेटवर्किंग प्रमोट करना है. और वाई नेटवर्किंग? बिकॉज ऑफ ग्लोबल, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक फीचर्स, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट. नेटवर्किंग का फीचर्स क्यों ऐड करा है. एंड नेक्स्ट रिलेटेड टू मोड ऑफ नेटवर्किंग. पहले सिर्फ एक ही नेटवर्किंग मॉडल अवेलेबल था, दैट इज B1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, दैट इज ओनली 1 मॉडल वाज अवेलेबल. बट नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस अलायंस मॉडल विद दैट लीड फॉर्म कंसेप्ट मॉडल. लेटर ऑन स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट दैट. So totally we have also incorporated annexer also in that particular module. One, guidelines for alliance, guideline for networking, then third one is guideline for networking with a lead firm concept. तो ये lead firm वगैरह क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो प्रीएम्बल्स में मैं ये जनरली बताना चाहूंगी कि ये जो बिकॉज ऑफ हमारा प्रेजेंट स्टेटस है, जो नेटवर्किंग हमने अलाउ किया है और क्यों हमको रिवाइज करना पड़ा, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स थे. बिकॉज 2005 के बाद आज 15 साल बाद भी सिर्फ 100 ने रजिस्टर्ड है. उसमें भी जैसा कि हम बात करते हैं कि स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप का भी सक्सेसफुल स्टार्टअप के रेशियोज में भी बहुत डिफरेंस है. एस्टेब्लिश करने के बाद, उसको कंसेप्चुअलाइज करने के बाद, सेटअप करने के बाद कितने प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और वो सक्सेस नहीं होता है. तो सेम नेटवर्क मॉडल में पहला इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड नेटवर्क था बाडगच नेटवर्क, और स्टिल बहुत सारे नेटवर्क जो रजिस्टर्ड है वो फुल फ्लेज अपना पूरा पोटेंशियल स्टिल दे आर नॉट यूजिंग. या तो वो मतलब बंद होने के उस पे हैं, या तो उसको वो एक्टिवली एफिशिएंटली दे आर नॉट यूजिंग दैट एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, प्रेजेंट नेटवर्क. सेकेंड है कि किस तरीके से जो हमारी इंडियन फर्म को स्ट्रेंथनिंग देनी है लार्ज इंडियन फर्म में, जो हमारे मोदी जी ने भी बोला है, बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी जो हमारा ये गाइडलाइन है नेटवर्किंग गाइडलाइन, वो सिर्फ डोमेस्टिक CA फर्म, मतलब इंडिया में नेटवर्क फर्म करना है, उसको ही एड्रेस करता है. इंटरनेशनल लेटर ऑन विल कम आउट विथ इंटरनेशनल नेटवर्किंग गाइडलाइन. अभी वाला नेटवर्क सिर्फ डोमेस्टिक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का हमारे ICAI के साथ रजिस्ट्रेशन वाला ही जो रूल्स रेगुलेशंस हमने करे हैं फॉलो, वो उसको ही एड्रेस करता है.
नेक्स्ट है जितना भी पिछले करंट हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क में जितने ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी हर्डल्स थे, उसको हम लोगों ने इसमें दूर कर दिया है, मिटिगेट कर दिया है। सो कंसर्न क्या है, क्यों हम लोगों को ग्रोथ ऑफ इंडियन सीए फर्म्स के लिए ये नेटवर्क इंट्रोड्यूस करना पड़ा? नंबर वन इज मेजोरिटी सीए फर्म्स आर एसएमपी। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ आवर फर्म्स। तो उसमें सबसे वन था कि जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रक्चर है दैट इज एसएमपीस। एज ऑन प्रेजेंट डेट सीओपी होल्डर्स जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है दैट इज 1,46,717। नॉन सीओपी होल्डर इट मीन्स इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योरशिप में है 2,35,018। सो टोटल हमारा मेंबर बेस्ड है 3,81,735। यदि हम फर्म की बात करते हैं, टोटल इंडिया में फर्म्स है 83,301 फर्म्स। प्रोप्राइटरी फर्म्स है 62,137। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म्स, 62,137 अमंग्स 83,000 अप्रोक्स। यदि हम पार्टनर काउंट की बात करते हैं कि 2 से 5 पार्टनर वाली कितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, तो दैट इज 23,831। इट मींस मोर देन मतलब 80,000 82,000 फर्म्स जो है वो अप टू 5 पार्टनर्स की ही फर्म है। देन 6 to 10 पार्टनर 1932, 11 to 15 पार्टनर 288 फर्म्स आर देयर, 16 to 20 partners 64 firms, 21 to 30 partners 28 firms, 31 to 50 partners 11 firms, and above 50 partners only 10 firms are there in our practicing domain. So ये स्ट्रक्चर हमको ये दिखाता है कि स्टिल इंडिया में प्रोप्राइटरी फर्म जो 62,000 है या अप टू 5 पार्टनर 23,000 है। तो रिलेटेड टू दैट मैक्सिमम जो स्टेटस है वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप जो स्मॉल एसएमपीज का ही फॉल करता है। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैव कन्फाइंड प्रैक्टिस टू ऑडिट एंड टैक्सेशन। अपार्ट फ्रॉम सो मेनी न्यू एरियाज ऑफ प्रैक्टिस, हमारा जो कोर एरियाज ऑफ प्रैक्टिस है टैक्सेशन, उसमें इनकम टैक्स, जीएसटी एंड ऑडिट सेगमेंट, उसी को मैक्सिमम कवर करता है। Many firms have audits allotted through the PDC के जो हमारे गवर्नमेंट ऑडिट, बैंक ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट और सर्टेन कंप्लायंस वर्क पे डिपेंडेंसी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स की है। नेक्स्ट आता है कि जो मर्जर और नेटवर्क क्यों नहीं होते हैं, मतलब बिग फर्म हम क्यों नहीं बनाते, एलएलपी इंट्रोड्यूस करने के बाद क्यों नहीं होता है। तो रीजन ये रहता है कि मैक्सिमम जो हमारा माइंडसेट है दैट इज हमारे पर्टिकुलर फर्म की आइडेंटिटी लॉस नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, बट अवर माइंडसेट है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। तो बिकॉज ऑफ दैट कंस्टेंट ऑल्सो वी आर नॉट एक्सपांडिंग अवर प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है कि क्लाइंट स्विचेस ओवर। क्या होता है जब छोटी फर्म है, यदि हम प्रोप्राइटर है या एसएमपी में प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे ही हमारा क्लाइंट यदि अपना टर्नओवर बढ़ाता है, उसका अपनी कंपनी बढ़ाता है, लिस्टिंग करता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस उसको रिक्वायरमेंट है, उसको अपने एक्सपांशन की जरूरत है, दैट टाइम वो जनरली अपना सीए चेंज कर लेता है। बिकॉज ऑफ दैट उसको लगता है कि मेरे पास ब्रांडेड कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होना चाहिए, बिग फर्म होना चाहिए, जिसका अपना नेम, फेम और ब्रांडिंग हो। तो जैसे ही क्लाइंट की ग्रोथ होती है तो जनरली जो देखा गया है वो अपना सीए चेंज करता है बिकॉज ऑफ दैट। तो कैसे उस पर्टिकुलर उसको भी हम लोग मीट आउट करते हैं थ्रू दिस प्रैक्टिस मॉडल। एंड लास्ट जो पॉइंट है कि प्रेजेंटली जो हम लोग ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस की बात करते हैं, जो लार्ज स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर भी यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोप्राइटरी या इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से एरियाज है और नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम प्रोप्राइटर की बात करते हैं या इंडिविजुअल की बात करते हैं या एसएमपी की बात करते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट और सजेस्ट, for example, maximum even at global level advisory services, because apart from compliance work, apart from government audit, apart from bank audit, apart from other statutory audits, you can also develop your advisory services, consultancy services, drafting related areas,
as a resource person, arbitration, mediation, conciliation, as an expert, reviewer, insolvency professional, registered valuer, opinion based practice, referral practice. This some areas of practice you will have to develop if you want to continue as a proprietary firm or as a SMP firm. तो ये कुछ एरिया है जो हमको वर्कआउट करके डिफाइन करके उस एरियाज को और हम अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं और अकॉर्डिंग अवर एक्सपर्टाइज हम नेटवर्क में एंटर हो सकते हैं. नेटवर्क में एंटर होने के कारण जैसे कि आपको ज्योग्राफिकली एंटायर कंट्री में प्रेजेंस रहेगा. If, for example, if you are expert in RERA, you are expert in particular area of service, for example, GST consultancy, advisory, international taxation, हम वही सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं जो हमारे रूटीन एरिया से रिलेटेड है. उसमें ज्योग्राफिकली बेस यदि हम बात करते हैं, हम इंदौर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिसाइडिंग इन इंदौर, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क जो आपका पूरा डोमेस्टिक इंडिया को कवर करता है. तो एट द टाइम जब उनको कंसल्टेंसी लगेगा रिलेटेड टू एमपी रिलेटेड एक्ट रेगुलेशन, रेरा, मे बी समटाइम सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, तो दे कैन अप्रोच यू. आप उस नेटवर्क का पार्ट हो सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्विसेस ऑल्सो, ज्योग्राफिकली ऑल्सो. नेचर ऑफ सर्विस के हिसाब से इवन यू कैन ज्वाइन together one or more firm and you can be create like you can be a part of one network जो कि सर्विस बेस के हिसाब से भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. ज्योग्राफिकली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्योग्राफिकल प्रेजेंस यदि आपको चाहिए तो यू कैन कनेक्ट एंटायर इंडिया नेटवर्क से भी आप कनेक्ट हो सकते हो. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्ड है आपकी फर्म का उसको किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बिफोर गोइंग इनटू रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स कि व्हाई नेटवर्किंग. सिर्फ मोदी जी बोल रहे हैं इसलिए हमको नेटवर्क करना है, या सिर्फ इसलिए है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन की ग्लोबल बिग फोर और बहुत बड़े बड़े जो नेटवर्क्स इंडिया के बाहर प्रेजेंस है, तो सेम हमको इंडिया में भी ऐसे बड़े नेटवर्क को क्रिएट करना है जो हमारा ग्लोबल प्रेजेंस भी शो कर सके. तो ऑफ कोर्स वन ऑफ विजन जो प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में दिया था, उनका एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरीके से ग्लोबल फर्म्स इंडिया में भी प्रेजेंस दिखा रही है तो 100 बिग इंडियन फर्म्स हमको क्रिएट करना चाहिए जो ग्लोबली प्रेजेंस हो. उसी को उन्होंने वापस से रिपीट किया 27th मन की बात में कि अगेन आपको ग्लोबल फर्म क्रिएट करनी है, उनकी मेंटरिंग करनी है और उनको कैसे आप क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे इसकी मेंटरिंग कर सकते हैं कि हमारे इंडियन फर्म का ग्लोबल प्रेजेंस हो. तो बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्किंग रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस. मैक्सिमम है बिकॉज हमने 2 साल से पेंडेमिक में देखा है इन एवरी ऑफिस हम फिजिकल भी वर्क कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग दैट बहुत सारे हमारे आईटी बेस्ड रिसोर्सेस है जो बहुत कॉस्टली होते हैं, हमारी एक्सपर्टीज होती है. तो ये सबकी कंबाइंड स्ट्रेंथ यदि हम शो कर सके फॉर एनी कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी वर्क, रेगुलेटर बेस्ड वर्क, तो वो हमारा जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो हमारी बैलेंस शीट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता है, पैन इंडिया प्रेजेंस बताता है. ये अपॉर्चुनिटी ओनली आपको नेटवर्क के थ्रू ही आप उसको ऐड कर सकते हो. हमेशा एक फर्म में हो सकते सर्टेन लिमिटेशन, एक टाइप के सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस मैनेजमेंट का आपकी सिंगल एसएमपी फर्म में हो सकता है, बट आपको यदि और डेवलप करना है, एक्सपर्टीज डेवलप करना है, सिस्टमाइज करना है, डिजिटल इनकॉर्पोरेशन करना है, नाउअडेज क्लाइंट्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और उस एनवायरनमेंट में हमको ऑडिट करना है तो हमको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दूसरे असेट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी रिक्वायरमेंट रहेगा. तो उसका कॉस्ट हम कैसे शेयर कर सकते हैं, तो थ्रू नेटवर्क वी कैन शेयर दैट. देन डिजिटल ब्रांडिंग एंड प्रेजेंस. ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट अब हमारा वर्चुअल मोड में इंडिया में या कहीं भी प्रेजेंस बहुत रिक्वायर्ड है. अपार्ट फ्रॉम हमारा फिजिकल ऑफिस स्टेटस, हमारा वर्चुअल प्रेजेंस थ्रू डिजिटल ब्रांडिंग, वेबसाइट, और किस तरीके से आपका डिजिटल एनवायरनमेंट में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपकी फर्म का प्रेजेंस है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग
सिर्फ इसलिए नहीं कि जो पहले वाले हमारे नेटवर्क का था, सबने जब नेटवर्क ज्वाइन किया दैट टाइम ये लगता था हम नेटवर्क इसलिए क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमको नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हाथों हाथ मिल जाएगी. when we will enter in any network, then we will get automatic so many professional opportunity and work. तो ये जो माइंडसेट है that is not true, I would say. ये बिल्कुल सही नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क में एंटर होंगे तो आपको जैसे एंटर होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी आपकी जनरेट होने लगेगी, कन्वर्ट होने लगेगी. तो दैट इज नॉट ट्रू. क्या हो सकता है उसमें, कैसे हम लोग अपनी एक्सपांड कर सकते हैं प्रैक्टिस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्योंकि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के कारण जनरली जो हमारे क्लाइंट्स है वो नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे ये नेटवर्क है वो देख के नहीं आएंगे, बट बिकॉज ऑफ आप क्या डिफरेंशिएट करते हैं, जो आप कॉमन प्रैक्टिसेस करते हैं. तो आपके क्लाइंट डिफरेंशिएट, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, तो वो जो 6 या 7 पॉइंट है आपके नेटवर्क का बेनिफिट है. 1 इज कॉस्ट शेयरिंग, 2 नॉलेज शेयरिंग. ऑलवेज नॉलेज शेयरिंग है. कोई भी टाइप का क्लाइंट यदि आपके पास आता है, आज हो सकता है आप सिर्फ जीएसटी पे प्रैक्टिस दे रहे हो सकता है सिर्फ इनकम टैक्स कंसल्टेंसी या इनकम टैक्स रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हो सकता है जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन का ओपिनियन चाहिए, बट इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, वी आर नॉट अपडेटेड, तो मे बी अवर नेटवर्क फर्म जो आपके नेटवर्क का पार्ट है वो आपके साथ एटलीस्ट. जो हमारे देश में अभी पूरी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है और बेस्ट बिल्डिंग होगी वो वर्ल्ड की, डिफरेंट पार्लियामेंट जो वर्ल्ड बोल रहे हैं, उसकी सारी जो देखभाल है वो बिरला साहब की निगरानी में है. और बिरला साहब जानने जाते हैं अपने डिसिप्लिन की खासियत है. प्लीज म्यूट योर ऑब्जेक्टिव है. I think I would request for please mute. So should I continue? Yes, ma'am, please. Yeah, thank you. So one of feature is that कि knowledge sharing आप कर सकते हैं, because जिसमें आपकी practicing firm, आपकी firm यदि कोई particular service या आपकी expert service provide नहीं कर सकती है, तो because of that network you can use that type of services from your other firms. ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ऑब्वियस वन फीचर ऑफ मेजर नेटवर्किंग का जो बड़ा फीचर है दैट इज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, जो अपने आप क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक एंटायर कंट्री प्रेजेंस. देन कॉमन वर्क प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल. आज आपकी खुद की एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल SQC1, जितना भी आईटी रिलेटेड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर है, वो आपकी पर्टिकुलर एक फॉर्म के लिए प्रोप्राइटर डेवलप करेगा और हो सकता है किसी ने डेवलप रखा है. तो बिकॉज ऑफ कि आप उस नेटवर्क का पार्ट है, यू कैन यूज ऑल दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी, चाहे वो प्लानिंग, प्रोसीजर, वर्क प्रोसीजर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्वालिटी कंट्रोल, तो दैट एवरीथिंग यू कैन यूज जॉइंटली विथ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क. सो नाउ बिकॉज ऑफ दैट ये नेटवर्क मॉडल के बारे में जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या फैसिलिटी, क्या फीचर्स हमारे नए नेटवर्क गाइडलाइन में है. सो 2 अप्रोचेस आर प्लेस्ड बिफोर द मेंबर इन प्रैक्टिस. एनी वन ऑफ अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड बाय जो भी इच्छा, जो भी चाहते हैं कि भाई इसको हम लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो एनी ऑफ अप्रोच यू कैन अडॉप्ट फॉर नेटवर्किंग. बिकॉज 2 या 3 ऑप्शन इसलिए दिए हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट आप किसी भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. तो पहले नेटवर्किंग का जो प्रेजेंट गाइडलाइन था उसके अलावा क्या नया फीचर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. अप्रोच 1 जो हम लोगों का पहले नहीं था, ऑल टुगेदर न्यू अप्रोच, दैट इज अलायंस मॉडल. इसमें डिफरेंट फर्म कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन अलायंस विथ अ न्यू नेम ऑफ अलायंस. और जो आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, आप जिसमें आपकी प्रैक्टिस फर्म है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, और फॉर द पर्पस ऑफ कुछ आपको जॉइंट ऑडिट या कुछ लेना है उसके लिए आप अलायंस बता सकते हैं. इसको आप कंपेयर कर सकते हैं मर्जिंग वाले से. टेम्पररी अप्रोच के लिए भी कर सकते हैं कि फर्स्ट आपने पहले अलायंस कर लिया, फिर आपको लगता है कि हमको इसको परमानेंट नेचर में जाना है, तो आप अप्रोच 2 के B1 पे जा सकते हैं या B2 पे जा सकते हैं. तो फर्स्ट अप्रोच इज दैट कि आप अलायंस मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट जो मॉडल है अप्रोच टू में 2 मॉडल है एज पर प्रेजेंट गाइडलाइन, दैट इज B1 जो अभी हमारा प्रेजेंट नेटवर्क का गाइडलाइन है, एग्जिस्टिंग मॉडल है। B2 में है लीड फॉर्म कंसेप्ट लाए हैं। हो सकता है कि आपको आपकी आइडेंटिटी वैसी ही रखनी है, आपको आपकी गुडविल क्रिएट करनी है, सीनियोरिटी ऑफ फर्म है। समझो आपने एक नेटवर्क 15 फर्म मिलके बना रही है, उसमें से एक फर्म हो सकती बहुत सीनियर हो, उसका गुडविल हो, और वो आप लोग यदि यूज करना चाहते हैं तो आप B2 कंसेप्ट जा सकते हैं जो लीड फर्म अप्रोच कंसेप्ट है। उस लीड फर्म में दूसरी नेटवर्किंग फर्म बना सकते हैं, तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट लीड फर्म ऑल्सो, कि अकॉर्डिंग दैट यू कैन कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग, उसका बेनिफिट ले सकते हो, सीनियोरिटी का, गुडविल का, या हो सकता है कोई रिकॉग्निशन हो रहा हो पर्टिकुलर एक फर्म का और उसकी अपनी ब्रांडिंग हो, तो यू कैन ज्वाइन विथ दैट लीड फर्म और अकॉर्डिंग दैट यू कैन क्रिएट योर नेटवर्क। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करे हैं तीनों अप्रोच, तो फर्म में अडॉप्ट एनी ऑफ 3 मॉडल जो भी उनको बेस्ट सूट होता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर प्रैक्टिस। फीचर्स ये है, रजिस्टर्ड तीनों नेटवर्क को करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, नॉट रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर अलायंस रहेगा जो टेम्पररी हो सकता है, तो उसके लिए रेगुलेट या रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी या कोई इंस्टीट्यूट का मॉनिटरिंग, अलायंस वाले अप्रोच में रिलैक्सेशन है। अप्रोच B1 और B2 में आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा आपका इंटरनल सिस्टम, जैसे कि हम पार्टनरशिप डीड फॉलो करते हैं वैसे ही इसका जो डॉक्यूमेंट है वो रहेगा। एंड ये पार्शियली रेगुलेटेड है, आई हैव ऑलरेडी शेयर अबाउट दैट कि जो अलायंस मॉडल है वो पार्शियली रेगुलेटेड रहेगा। सर्टेन थिंग आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आप आपका AOP ले सकते हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो वो सब फीचर सेम है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दैट। B1 में रेगुलेटेड, B2 भी रेगुलेटेड रहेगा। जो अलायंस मॉडल है टोटली न्यू अप्रोच है, और जो लीड फर्म मॉडल है वो भी टोटली न्यू अप्रोच है। B1 है वो हमारा पहले वाला मॉडल है। सो अब हम अलायंस की बात करते हैं। जनरली फॉर एग्जाम्पल 4 फर्म है, A एंड कंपनी, B एंड कंपनी, C एंड कंपनी एंड D एंड कंपनी, आपस में आके यदि वो अलायंस बनाते हैं, अलायंस के फॉर्म में हो सकता है ABCD वो लोग अलायंस का नाम रखे, तो व्हाट दे कैन मेंशन ABCD एंड अलायंस। इंस्टीट्यूट से उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको ARN रहेगा, अलायंस रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूट जो भी जितनी भी फर्म है वो अपनी इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस कैरी कर सकती है, जैसे वो पहले कैरी करती थी एज इट इज वो कैरी कर सकते हैं। वो अपनी स्टेशनरी में मेंशन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं कि वो किसी अलायंस का पार्ट है। जितनी भी अलायंस फर्म है वो बेसिकली नॉन ऑडिट पर्पस के लिए ज्यादा सुटेबल मॉडल है। इन केस सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई टेंडर है या कोई कंपनी का टेंडर है जिसमें कि आप कंसल्टेंसी दे रहे, आपका कंपटीशन दूसरी जो नॉन ऑडिट फर्म है, मतलब ऑडिट फर्म ही नहीं है बल्कि दूसरे लोग हैं जो एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, तो ये अलायंस मॉडल उनको ज्यादा सूट करेगा। यू कैन अप्लाई। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, इन ऑल मॉडल्स आप AOP के फॉर्म में आपका कर सकते हैं, और यदि आपने AOP लिया है तो उसमें आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, GST ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, आपके अकाउंट्स कंसोलिडेटेड अकाउंट आप ऑडिट करा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग दैट, बिकॉज ऑफ जैसे गवर्नमेंट टेंडर है, एडवाइजरी से रिलेटेड है, अकाउंटेंसी एडवाइजरी है, HR सिस्टम बनाना है, बहुत सारी कंसल्टेंसी एरियाज है, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस मॉडल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट आपको वही कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने, रोटेशन ऑफ ऑडिटर सेम रहेगा, सभी जो रेगुलेशंस, कोड ऑफ एथिक्स, CA एक्ट रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है, सर्टेन टाइप ऑफ बोलते हैं ना कि रोटेशन है, कि आप यदि इंटरनल ऑडिटर है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस पर्टिकुलर अलायंस मॉडल में एक फर्म है स्टैट्यूटरी, तो उस अलायंस मॉडल के नेटवर्क में दूसरी फर्म उसकी इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकती। वो वाले जो फीचर्स है एज पर आवर कोड ऑफ एथिक्स वो एप्लीकेबल जरूर रहेंगे। देन रेफरल अलाउ है। फॉर एग्जांपल अलायंस मॉडल में आपकी 6 फर्म से 6 फर्म आपस में रेफरल प्रैक्टिस कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ फीस परमिजिबल है, अकाउंट फॉर कर सकते हैं। उसके अलावा जो फर्म को अपॉइंटमेंट मिला है, जो उनकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, वो पर्टिकुलर रिपोर्ट साइनिंग अथॉरिटी उनका रहेगा। कोई भी फर्म यदि
बाहर होती है उस अलायंस से, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, बिकॉज वो जब अलायंस का पार्ट थी और कोई वर्क उन्होंने एग्जीक्यूट किया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उस वर्क के लिए दैट पर्टिकुलर फर्म विल रिस्पॉन्सिबल। एंड डिवीजन ऑफ वर्क के लिए डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो हमारा अगेन कोड ऑफ एथिक्स वगैरह के जो आपके इंटरनल यदि बनाते हैं कुछ एमओयूज, तो उसमें अकॉर्डिंग दैट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए एज पर अवर कोड ऑफ एथिक्स। देन फर्म्स आर फ्री टू ज्वाइन एंड एग्जिट अलायंस। इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी अलायंस मॉडल में नहीं रहेगा, कभी भी ज्वाइन करके एग्जिट कर सकते। जस्ट एनी एंट्रेंस और एग्जिट वाला आपको इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म करना रहेगा, रजिस्टर्ड एसएसपी पे करना रहेगा। यदि कोई एक फर्म यदि अलायंस को छोड़ती है तो बाकी फर्म पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट आया है वो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इवन पर्टिकुलर वर्क के लिए एज ए जॉइंट वेंचर भी अलायंस हो सकता है। अगेन बायलॉज आपको कहीं भी अलायंस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। इंटरनल एग्रीमेंट जो भी आपका बनता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑथोराइज, हर फर्म का एक ऑथोराइज पार्टनर आप बना सकते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ दैट आप इंस्टीट्यूट या दूसरी जो फॉर्मेलिटी है ऑन बिहाफ ऑफ अलायंस मॉडल वो ऑथोराइज पार्टनर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे अलायंस मॉडल के पूरे फीचर्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं जो प्रेजेंट मॉडल है। बहुत सारे मेंबर्स को मे बी अवेयर अबाउट दैट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग मॉडल बाय प्रैक्टिसिंग इन इंडिविजुअल फर्म ने। ये कागज और बचा है। सो इन B1 मॉडल अप्रोच जो हमारा 2 में B1 है वो नेटवर्क ऑफ फर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन 4 फर्म्स, फॉर एग्जाम्पल अगेन A एंड कंपनी, B, C एंड D एंड कंपनी come together to form a network, they may name their network as ABCD. Again ABCD, but in network एंड एफिलिएट्स यूज करना रहेगा और नेटवर्क यूज कर सकते हैं, दोनों उसमें परमिजिबल है। बट अलायंस में अलायंस आपको यूज करना है। इसमें एनआरएन रहेगा, उसमें एआरएन था क्योंकि अलायंस था। यहाँ पे नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसमें इंटरनल इंटीग्रेशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई कंपनी हम लोग फॉर्म करते हैं तो एमओयू एमआरए जो हमारा रहता है, तो सेम बाइंडिंग नेचर B1 और B2 जो हमारा अप्रोच 2 है उसमें मैंडेटरी फॉलो करना रहेगा। बट अलायंस में ऐसा है कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट हम कह सकते हैं, बट हियर दैट विल बी द एज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको बाइंडिंग करेगा। हर नेटवर्क में जो ज्वाइंट फर्म है उनको सभी के ऊपर ये फॉलो करना रहेगा। अगेन आप स्टेशनरी पे जितनी भी आपकी पब्लिकेशन स्टेशनरी सब पे मेंशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क की आपकी फर्म पार्ट है। आपकी फर्म अपनी वेबसाइट पे उस नेटवर्क जिसका आपने जॉइंटली एबीसीडी नेटवर्क बनाया है उसके बारे में मेंशन कर सकती है। बिकॉज प्रेजेंटली नेटवर्क खुद अपना वेबसाइट नहीं बना सकता एज पर प्रेजेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, बट यदि फर्म का अपना वेबसाइट है दे कैन मेंशन अबाउट दैट डिटेल ऑफ नेटवर्क कि वो पर्टिकुलर एबीसीडी नेटवर्क का पार्ट है, एबीसीडी एंड एफिलिएट्स का पार्ट है, एंड फ्रीली दे कैन मेंशन इन ईच एंड एवरी प्रोफेशनल स्टेशनरी अबाउट द दिस नेटवर्क, डिटेल ऑफ दिस नेटवर्क कि वो जिससे एसोसिएट है। हर नेटवर्क में एक फीचर्स बिल्कुल कॉमन है, एक फर्म एक ही नेटवर्क का पार्ट हो सकती है, अलायंस का पार्ट हो सकती है, लीड फर्म वाले अप्रोच का पार्ट हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक फर्म ने एक बार अलायंस का भी पार्ट है, दूसरे किसी के साथ एज ए नेटवर्क पार्टनर भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एट अ टाइम आप एक ही अलायंस और नेटवर्क और लीड फर्म का पार्ट हो सकते हो। ऑल फर्म बिलोंगिंग टू नेटवर्क इम्पैनलमेंट के लिए इंडिविजुअल अप्लाई कर सकती है। इंस्टीट्यूट जरूर रिप्रेजेंट करेगी थ्रू पीडीसी कि इनके कंबाइंड स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज का पॉइंट मार्किंग सिस्टम इनकॉर्पोरेट करे। आरबीआई है, C&AG है, तो वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीचर्स पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट कंबाइंड रिकॉग्निशन नेटवर्क स्ट्रेंथ रिसोर्सेज, उसका कंबाइंड वैल्यूएशन करके ऑडिट अलॉटमेंट प्रोसेस में उस नेटवर्क की कंबाइंड स्ट्रेंथ को ऐड कर सके। तो आईसीआई वो रिप्रेजेंटेशन जरूर थ्रू पीडीसी करने के प्रोसेस में। अगेन इंडिपेंडेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट सेम प्रोसीजर रहेगा, रोटेशन ऑफ ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिट, आपस की नेटवर्क फर्म का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हर उसके नेटवर्क में रहेंगे।
देन क्वालिटी कंट्रोल जो डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी इंडिविजुअल फर्म जो भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्ट रहेगी, तो आपको नेटवर्क का SQC1 भी डेवलप करना पड़ेगा कि किस मैनर में आप अपनी क्वालिटी का एश्योरेंस देंगे। उसके अलावा जो पार्टनर और साइनिंग रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल फर्म अपना टेकअप करेगी असाइनमेंट, उसमें उसकी इंडिविजुअल फर्म वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। रेफरल प्रैक्टिस अलाउड है, जैसे पहले भी अलाउड थी सेम रहेगी। जो भी हमारे कोड ऑफ एथिक्स के प्रोविजंस रहेंगे वो फॉलो करने रहेंगे। नेटवर्क पे सेम प्रोविजंस रहेंगे जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पे एथिक्स के रिक्वायरमेंट है वो सभी इस पे भी रहेंगे। अगेन इंटरनल इंटीग्रेशन एग्रीमेंट जो हमारा MOU टाइप का रहेगा वो कंपल्सरी मैंडेटरी है। कोई भी फर्म यदि छोड़ेगी उस पर्टिकुलर नेटवर्क से बाहर होती है तो अगेन उसके जो पॉलिसी प्रोसीजर है, हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट और डीड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर करे हैं। तो हमारी जो नेटवर्क बनाना चाहती है जो फर्म, उसको वो लोग रेफर कर सकते हैं दैट स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स डेवलप्ड बाय ICI, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनकी टर्म्स कंडीशन में कोई चेंज आता है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं उस स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में। अगेन कोई भी बाईलॉज उनका कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा CA एक्ट, रेगुलेशन, काउंसिल गाइडलाइन और कोड ऑफ एथिक्स को। और ये जो कॉपी रहेगी आपके इंटरनल एग्रीमेंट की साइंड बाय ऑथोराइज पार्टनर, वो आपको टाइमली सबमिट करना रहेगा इंस्टीट्यूट के SSP पे। एंड विद दैट सबमिशन ऑल्सो कोई चेंज आता है, कोई अल्ट्रेशन रहता है, एडिशन रहता है, वो भी आपको इंस्टीट्यूट को अपडेट करना रहेगा थ्रू SSP। नेक्स्ट जो हमारा फाइनल कंसेप्ट था दैट इज लीड फर्म। ये टोटली न्यू कंसेप्ट है जो अप्रोच टू B2 नेटवर्क ऑफ फर्म विथ लीड फर्म एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट फर्म्स ऑफ नेटवर्क। इट मीन्स वो लीड फर्म जितनी नेटवर्क फर्म में ज्वाइन लोगे उनके साथ वो लीड फर्म के साथ एसोसिएट होंगे। फॉर एग्जाम्पल when 4 firms A and company, B and company आपकी 4 है एग्जाम्पल में, come together to form a network, they will suffix as it is and affiliates or network to one of the firms selected by constitute firm। आप सबने मिलके समझो 10 फर्म है, उनमें से मिलके ये सिलेक्ट किया कि A एंड कंपनी रहेगी, वो लीड फर्म रहेगी, तो उसका नाम रहेगा A एंड कंपनी, देन आगे एंड एफिलिएट्स एंड नेटवर्क आपका रहेगा उसके साथ। बट वो लीड फर्म जो रहेगी वो ऑन बिहाफ ऑफ दूसरी फर्म के हिसाब से वो इम्पैनल करेगी, सब में वो एंड कंपनी ही लीड फर्म के रूप में और ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर नेटवर्क वो इम्पैनल करेगी। तो दैट इज लीड फर्म अप्रोच। एंड टोटली ये तभी डिसाइड करना चाहिए लीड फर्म कि जो लीड फर्म रहेगी उसकी अपनी गुडविल, उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी सीनियोरिटी, उसकी ब्रांडिंग, और अकॉर्डिंग दैट यू कैन क्रिएट योर लीड फर्म अप्रोच जो नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं। सो लीड फर्म में वन नेटवर्क, अगेन एक ही बार में एक ही फर्म एक ही नेटवर्क का पार्ट हो सकती है, दैट इज सेम इन ऑल स्ट्रक्चर। देन जो लीड फर्म रहेगी स्पेसिफिकली उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ और वो ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर नेटवर्क, इम्पैनलमेंट में ये फायदा रहेगा उसको कि बिकॉज बाय वे ऑफ इंटरनल एग्रीमेंट जितनी उसके साथ एसोसिएट फर्म है उनका एंटायर जो रिसोर्सेस है वो रिकॉग्नाइज हो सकते हैं वो एट द टाइम ऑफ इम्पैनलमेंट। फॉर एग्जाम्पल यदि वो C&AG में इम्पैनलमेंट या कुछ करते हैं तो दे कैन यूज कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट, और ICI इसको रिप्रेजेंट करेगी दिस स्ट्रक्चर को कि उसको वो लोग रिकॉग्नाइज करे। अगेन इंडिपेंडेंस प्रोविजन सेम रहेंगे। क्वालिटी कंट्रोल जो SQC1 रहेगा इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट फर्म के साथ साथ आपको B2 वाला जो कंसेप्ट है उसमें भी डिजाइन करना रहेगा आपका सेपरेटली कि किस तरीके से आप क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे। देन अगेन इंडिविजुअल फर्म टेकअप, जितने भी जो प्रोफेशनल वर्क है उनके ओन ले सकते हैं, खुद भी अपना एक इंडिविजुअल स्टेटस वो लीड फर्म मेंटेन रख सकती है, पर वो इंडिविजुअल फर्म में जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएगी तो वो पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर ही साइन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। अगेन रेफरल अलाउड है,
वो ही कंसेप्ट लगेगा कोड ऑफ एथिक्स का जो फर्म पे लगता है, पार्टनरशिप फर्म पे या चार्टर्ड अकाउंटेंट पे जितने प्रोविजन लगते हैं वो सभी प्रोविजन एप्लीकेबल रहेंगे, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क फर्म ऑल्सो। इन केस ऑफ यदि कोई फर्म छोड़ती है उस नेटवर्क को, तो अगेन पूरी फॉर्मेलिटीज जो हमने डिस्कस करी थी वो करनी रहेगी। लीड फर्म का जो पार्टनर है सभी रिपोर्ट सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ दूसरी फर्म के हिसाब से साइनिंग के लिए ऑथोराइज हो सकता है। सो अगेन इंटरनल इंटीग्रेशन एग्रीमेंट हम लोगों ने अपडेटेड जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है वो एसएसपी पे आपको मिल जाएगा, एंड इवन रिकंस्टिट्यूशंस रहेगा वो आपको रजिस्टर्ड करना रहेगा आईसीआई पे। और अगेन जो नेटवर्क फर्म जाएगा जो भी अल्ट्रेशन अमेंडमेंट चेंजेस रिलेटेड टू दैट सबको फॉलो करने रहेंगे। सो ये तीनों कंसेप्ट जो हमने डिस्कस करे हैं, तो एंटायर जो हमारा गाइडलाइन का पेपर है, जो नेटवर्क का पेपर है, पैरा 1 पूरा ये बताता है कि गाइडलाइन के व्हाट इज अबाउट दैट, क्यों हमको क्रिएट करना है, उसके क्या बेनिफिट है, इस टाइप के नेटवर्क का मतलब स्ट्रेंथन कैसे हम अपनी प्रेजेंट प्रैक्टिस को कर सकते हैं। पैरा जो सेकेंड है टोटली ग्रोथ ऑफ फर्म्स किससे रिलेटेड है। पैरा 3 व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट नीड फॉर नेटवर्किंग, और जो तीनों गाइडलाइंस है वो पैरा 4 में अलग से दी गई है, एसएसपी पोर्टल पे अवेलेबल है। फॉर्मेलिटीज आर ऑल्सो देयर कि हाउ यू कैन इम्पैनल फॉर, हाउ यू कैन डू इम्पैनलमेंट, कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है, क्या फॉर्मेलिटीज है, वेरियस फॉर्म्स आर देयर। फॉर्म ए रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो तीनों नेटवर्क अलायंस के लिए, नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग विथ लीड फॉर्म कंसेप्ट, तीनों के अपने कंप्लायंसेस डिफरेंट है। व्हेन यू विल सिलेक्ट, जब भी आप सिलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग दैट आपको उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी जो इंस्टीट्यूट के साथ है उस मॉडल में रहेगी। सो इन शॉर्ट वी कैन से वी हैव for the growth of our firm alliance model, network model and lead firm model approach, then आपकी मॉडलिटी ऑफ वर्किंग, नेमिंग प्रोविजन, कंसेप्ट सभी आपकी एक अपेंडिक्स हम लोगों ने अटैच करा है, उसमें कंप्लीट मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। नेम अप्रूवल प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी फीचर्स आर एडेड इन अवर एसएसपी पोर्टल। सो नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 11 और 21 में क्या डिफरेंस थे, 11 क्यों नहीं सक्सेसफुल रहा, 21 में क्या बेनिफिट है जो हम उसको यूज कर सकते हैं। गाइडलाइन जो 11 थी वो सिर्फ नेटवर्क के ही बारे में बताती थी और सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन है अलायंस मॉडल का भी और लीड फर्म का भी। अलायंस मॉडल में आप बेनिफिट जो हम लोगों ने डिस्कस करें वो ले सकते हैं, इसमें आपकी लीड फर्म में आइडेंटिटी रहेगी। अलायंस मॉडल का एक बेनिफिट और है, सपोज आपका कोई क्लाइंट है जो लिस्टिंग करवाना चाहता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस चाहता है, अदर सर्विसेज उसको चाहिए जो हमारी फर्म प्रोवाइड नहीं करती है, तो टेम्पररी आप अलायंस कर सकते हैं। हमारे कन्वीनर इसके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं कि यदि हम लोगों ने जैसे कोई हमारा क्लाइंट 15 साल है, 20 साल से हमारे साथ है, जैसे वो कंपनी क्रिएट करता है या वो अपना एक्सपांशन करता है तो वो चेंज करता है। तो वो हिंदी पिक्चर का जो एक सॉन्ग है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, तो ये टाइप का कंसेप्ट है। तो आप टेम्पररी जॉइंट वेंचर कर सकते हैं इन द अलायंस मॉडल फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी। आप कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये 6 या 7 फर्म है जो हम जॉइंटली, यदि आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है, आपको लिस्टिंग का करना है, आपको स्टार्टअप करना है, आपको सब्सिडी करना है, तो हमारे पास ये नेटवर्क में हमारी फर्म के साथ अवेलेबल और फर्म से, तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अभी रिलैक्सेशन से नेटवर्किंग गाइडलाइन में। पुराने में फॉर्मल एफिलिएशन और फॉर इंटरनल जो बायलॉज थे उसके ऊपर बाइंडिंग था। अभी जो ये अलायंस मॉडल है दैट इज लूज फॉर्म ऑफ फर्म कमिंग टुगेदर विदाउट एनी बाइंडिंग। आप सिर्फ अपने रिसोर्सेस पूल कर सकते हैं और बड़े बड़े वर्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग बोलते हैं ना कि मोटिवेट करेगा कि हाँ हम लोग अलायंस मॉडल से स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक असाइनमेंट वाइज पहले कोई मॉडल नहीं था, अब आप असाइनमेंट वाइज भी आप क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क।
और पर्टिकुलर नेम देने का था। तो नॉन अटेस्ट फंक्शन, जैसे यदि आपने एओपी क्रिएट कर लिया तो आप उसकी ब्रांडिंग एओपी के फॉर्म में, उस नेटवर्क की अपनी ब्रांडिंग, अपनी आइडेंटिटी आज तक पर्टिकुलर नेटवर्क इंडिविजुअल फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकता था, इम्पैनल नहीं कर सकता था फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, कॉर्पोरेट ऑडिट, मतलब डिफरेंट टाइप के उसमें कंसल्टेंसी एरियाज में एंटर नहीं हो सकता था। बट ये नई रिवाइज गाइडलाइन के बाद आप लोग जॉइंटली किसी कंसल्टेंसी एरिया में, एडवाइजरी में, सर्टेन सिस्टम एस्टेब्लिश करने में, एसओपी बनाने में, किसी भी कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, आप ये मॉडल यूज कर सकते हैं। लीगल स्टेटस एज आई हैव शेयर्ड अबाउट दैट, एओपी रहेगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट भी करवा सकते हो आप अलायंस और नेटवर्क का, और अकॉर्डिंग दैट आपका एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्टेटस रहेगा जिसमें आप कंसल्टेंसी एरियाज कवर कर सकते। एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन पहले नहीं थी, नेटवर्क अपना खुद एडवर्टाइज नहीं कर सकते थे, बट कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इसके फॉर्मुलेशंस में है कि नेटवर्क खुद भी अपना कैसे एडवर्टाइज करेगा। राइटअप की गाइडलाइन हम लोग, वी आर अंडर प्रोसेस ऑफ दैट। कॉमन बैलेंस शीट आप नेटवर्क की बना सकते हो, जो पहले ये फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। अब नेटवर्क की अपनी बैलेंस शीट और सभी फीचर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट के रहेंगे, उसको ऑडिट भी करा सकेंगे और उसको दे भी सकेंगे। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे जो हमारे प्रेजेंट स्ट्रक्चर में नहीं थे, इसलिए इसको एक्सपांड करा था। अगेन ये जो डिफरेंसेस है अबाउट इम्पैनलमेंट, अबाउट कैसे आप उसको प्रैक्टिस के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं थ्रू इंटरनल एग्रीमेंट, आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं, दैट इज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये सिर्फ डिफरेंसेस इस पर्टिकुलर नेटवर्क में दिए हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अलायंस मॉडल से प्रिफरेबली आप स्टार्ट कर सकते हैं, रिसोर्सेस आपके कंबाइन कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल आप एक जैसा रख सकते हैं, स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट फॉर्मेट रख सकते हैं, सेम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, सेम ब्रांडिंग के लिए टूल्स यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपका सबका सिस्टमाइज हो सकता है। सिर्फ लीड फर्म वाले मॉडल में ये डिफरेंस है कि लीड फर्म एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स फर्म करेगी, दैट इज डिफरेंट सेगमेंट, वो आप उसको यूज कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि तीनों मॉडल सीए फर्म के पास ऑप्शन में है। हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इस 3 फर्म में से कोई भी मॉडल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकती है। दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ नेटवर्किंग अंडर आईसीआई। जैसा कि हमारे यहाँ मैं आपको और एक गुड न्यूज आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, जो मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म है, यस्टरडे वी गॉट दैट गुड न्यूज कि एमसीए ने हमको अप्रूव कर दिया है कि हम दूसरी जो हमारे जैसे पैरेलल है विथ एडवोकेट, विथ एक्चुरियल, we can do our multidisciplinary partnership. Excuse me. तो आप मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा सेकेंड फेज रहेगा, एक बार हमारे ये डोमेस्टिक नेटवर्क सेट हो जाता है तो इंडियन जो नेटवर्क फर्म रहेगी वो फॉरेन सीए को उस नेटवर्क का पार्ट बना सकेगी। थर्ड फेज में इंडियन नेटवर्क फॉरेन नेटवर्क को भी बना सकेगा। ये फेज के बाद हम कह सकते हैं कि हमारी इंडियन फर्म्स का ग्लोबल प्रेजेंस हो सकेगा। तो कीर्ति जी जस्ट हमारे चीफ गेस्ट का स्टेटस। मैडम सर ज्वाइन करने वाले हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे हम पीपीटी बनाने के लिए मेंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं रीड आउट करता हूं जो तो एक काम करते हैं कीर्ति जी, जो ये कॉर्पोरेट फॉर्म की 3-4 स्लाइड है, श्योर मैम, आफ्टर कंप्लीशन जैसे 10 मिनट्स में अपने चीफ गेस्ट ज्वाइन करते हैं तो फिर अपन क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, आई थिंक, है ना? तो जैसा कि आई हैव मेंशन इन माय फर्स्ट स्लाइड अबाउट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, तो आप अपनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म क्रिएट कर सकते हैं। रादर आई वुड सजेस्ट कि आपको कॉर्पोरेट अपनी कंपनी जरूर बनानी चाहिए बिकॉज ऑफ बेनिफिट, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर देयर।
फॉर एग्जाम्पल आप आपकी जो कंसल्टेंसी की नेक्स्ट स्लाइड में मैं सर्विसेज जरूर मेंशन करूंगी, बट इन दैट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ICAI से आपको कंपनी का अप्रूवल लेना है, देन कंसल्टेंसी कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो। आप विथ फुल टाइम प्रैक्टिस आपकी फर्म के साथ यू कैन बी होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लस आपके फैमिली मेंबर ऑल्सो कैन बी शेयर होल्डर इन दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। तो ये बहुत अच्छा एरिया है। तो जो डेफिनेशन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी की रहेगी कि आप कौन सी सर्विसेज अपनी कॉर्पोरेट्स में ले जा सकते हैं, तो क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, एक्सेप्ट ऑडिट, एश्योरेंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट जो होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली ऑडिट एज एन लिक्विडेटर, एज एन एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, वो आपको पूरा सेपरेट रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऐड सो मेनी कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज मेरे PPT में जरूर मेंशन करी है। आई विल शेयर दैट PPT, और वैसे भी इंदौर ब्रांच की साइट पे अपलोड रहेगी। तो ये एन नंबर ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी कंपनी, और जिसमें क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, सर्टेन टाइप ऑफ इंटरनल रिस्क बेस्ड ऑडिट, इस टाइप की सभी आप क्रिएट कर सकते हो, अपनी कंपनी में जनरेट कर सकते हो। तो ट्रूली जो हमारी ऑडिट फर्म रहेगी, जो ऑडिट और अटेस्ट फंक्शन के लिए आप उसको एज अ फर्म वर्क कर सकते हैं, और फॉर कंसल्टेंसी एरिया यू कैन क्रिएट योर ओन कंपनी। दूसरा मैं आप लोगों से, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम है, 5-10 मिनट्स, हमारे जो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स नाउअडेज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ICAI प्लेटफॉर्म इटसेल्फ अवेलेबल है। तो हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एज एन इंडिविजुअल दे कैन गिव सर्विसेज टू ICAI, और उसमें ऑनरेरियम और सर्टन फीस ऑल्सो है। तो वो पर्टिकुलर हमारे डिपार्टमेंट जो ICAI में आप इम्पैनल कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, और ये है जिसको लेटर ऑन स्लाइड पे करूंगी। बट एज टुडे अंडर CMP दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑर्गेनाइज, तो CMP बेनिफिट के लिए आई हैव मेंशन दैट about the portal related details CMP benefit, and in particular CMP benefit apart from all areas, जो हम बोलते हैं ना कि स्पेसिफिकली ऑडिट रिलेटेड टूल है, आज जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, वो सभी फीचर्स हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल है, डिजिटल लाइब्रेरी का है, डेटा एनालिटिक्स टूल है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सर्टेन इंश्योरेंस स्कीम है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन वाली है, फिर सॉफ्टवेयर्स तो बहुत सारे अवेलेबल है जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, GST है, इनकम टैक्स है। तो ऑल यू कैन गो थ्रू दैट CMP वेबसाइट, हियर आई हैव मेंशन अबाउट दैट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सो मेनी प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। अब आवर मेंबर कैन बी एग्जामिनर इन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। आप एग्जामिनर के अलावा पेपर सेटर, हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, फिनेंशियल रिपोर्टिंग में, स्टैंडर्ड्स में, अकॉर्डिंग दैट आप सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया, एंड एज एन एग्जामिनर यू कैन इम्पैनल ओवर देयर एज एन ऑब्जर्वर ऑल्सो। तो दैट इज अंडर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। जनरली जितने सर्टिफिकेट कोर्स है, आई वुड से 30 से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्स है, आर्बिट्रेशन, फॉरेंसिक, PQC कोर्स में डीसा, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, DIRM, वेल्थ मैनेजमेंट, कॉन्ट्रेंट ऑडिट, 30 कोर्सेस आर देयर। तो यू कैन बी देयर एज अ फैकल्टी, आप फैकल्टी हो सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रेंट ऑडिट की यदि आपने सर्टिफिकेट कोर्स करा है, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल KYC में आपकी एक्सपर्टीज है, तो आप वो सेशन ले सकते हो। पूरे साल में कम से कम 20 से ज्यादा ये कोर्सेज का शेड्यूल रहता है। तो फॉर एग्जांपल फॉर 1 घंटे के लिए आपका 3000 रुपीज है, तो जनरली 10 से 12 अलॉट फैकल्टीज को होते ही हैं, तो आराम से इसमें 1,20,000 करीब का रेम्युनरेशन, ऑल टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स में ये स्टैंडर्डाइज रेम्युनरेशन है।
यू कैन बी ओवर देयर, फैकल्टी हो सकते हैं। उसके अलावा आप वहां पर पेपर सेटर हो सकते हैं, एग्जामिनर हो सकते हैं, आप जो हमारे क्वेश्चंस हम लोग डेवलप करते हैं एमसीक्यू, उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो, और अकॉर्डिंग दैट एग्जामिनर भी हो सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ये जितने सर्टिफिकेट कोर्स का आप प्रैक्टिस में बेनिफिट ले रहे हो, उसके साथ यू कैन इम्पैनल ओवर देयर एज अ लाइक फैकल्टी, पेपर सेटर, एज एन एग्जामिनर। सो ये एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी आपकी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में, जो हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्वालिटी रिव्यूअर भी इम्पैनल कर सकते हैं यदि आपको एक्सपीरियंस है लिस्टेड कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट और उसका। तो जनरली लिस्टेड कंपनी की रिव्यू का क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में काम होता है। एक रिव्यू लिस्टेड कंपनी का अभी जो ऑनरेरियम है दैट इज 1 लाख रुपीज। तो जनरली 3 से 4 बैलेंस शीट भी यदि आप रिव्यू करते हो तो 3-4 लाख रुपीज ऑनरेरियम आपका क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में इम्पैनल से। मैंने यहाँ पर लिंक भी मेंशन किया है, तो अवर मेंबर कैन रेफर दैट लिंक ऑल्सो। देन एट रिसर्च कमिटी ऑल्सो, रिसर्च कमिटी हर साल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्सीलेंस के लिए अवार्ड देती है। तो हमको बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट आती है, तो उसमें हमारे मेंबर रिसर्च कमिटी में इम्पैनल कर सकते हैं। छोटी छोटी रिपोर्ट के रिव्यू का काम जनरली आधे घंटे में 1 घंटे में हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट की रिव्यू का ऑनरेरियम 10,000 रुपीज प्लस 1 स्ट्रक्चर्ड सीपी आवर्स। तो जनरली 5 से 10 रिव्यू ये एनुअल रिपोर्ट जरूर हमारे इम्पैनल मेंबर को इंस्टीट्यूट रिसर्च कमिटी भेजती है। उसके अलावा यदि फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर एरिया में आपकी एक्सपर्टीज है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चैरिटेबल के बहुत सारे ऑडिट करती है, सोसाइटी बेस्ड के करती है, एनजीओस के करती है, माइनिंग के, सीमेंट के, या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेसिफिक करती है, तो उसकी अकाउंटिंग, उसका टैक्सेशन, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर आप रिसर्च कमिटी में सबमिट कर सकते हो। छोटे छोटे रिसर्च पेपर 50 पेज से कम का कोई रिसर्च पेपर है 20,000, 100 से तक का है 36, एंड मोर देन 100 पेजेस है 48,000, एंड अप टू 1 लाख रुपीज ऑनरेरियम रिसर्च कमिटी भी देती है। साथ में डॉक्टर स्कॉलरशिप स्कीम और प्रोजेक्ट स्कीम है। डॉक्टर स्कॉलरशिप स्कीम में आप इम्पैनल करते हैं तो जनरली 50,000 मंथली की स्कॉलरशिप है 3 साल तक। प्रोजेक्ट में अप टू 10 लाख रुपीज है। आईसीआई जर्नल में आप राइटअप देते हो 2 और 3 पेज राइटअप के जो आपके रहते हैं, डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, 5,000 रुपीज ऑनरेरियम है। देन हमारे जो रिव्यू खुद के इंस्टीट्यूट के हैं, एफआरआरबी और टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, आप यदि टैक्स ऑडिट करते हैं, आई एम श्योर बहुत सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट करते हैं, आप एज अ रिव्यूअर अपने आप को इम्पैनल करा सकते हैं टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में। अगेन 20,000 पर रिपोर्ट रिव्यू का एफआरआरबी और टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड देता है। ईयर में कम से कम 4 से 5 या 6 रिपोर्ट जरूर इंस्टीट्यूट भेजती है। 3 घंटे का आपको स्ट्रक्चर्ड सीपी रहेगा, 20,000 पर रिपोर्ट रिव्यू का रहता है। जनरली इस रिव्यू में पूरा क्राइटेरिया फिक्स रहता है, इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट, अकॉर्डिंग दैट आपको आपका रिव्यू करके इंस्टीट्यूट को भेजना रहता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड और टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इम्पैनल कर सकते हैं इफ दे आर इन ऑडिट एरिया। देन अभी लेटेस्ट जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसमें स्टिल वैकेंसी ओपन है एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ टेक्निकल रिव्यूअर और रिसोर्स पर्सन। जो हम लोग ई मॉड्यूल्स बना रहे हैं उसके लिए, जो एसडीजी यूएनओ के गोल है उसके लिए हम लोग टेक्निकल मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट 15 जुलाई तक, यदि आपका कोई इंटरेस्ट है एज अ रिसोर्स पर्सन, कंटेंट राइटर, रिव्यू करने के लिए, तो आप इधर इम्पैनल कर सकते हो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बोर्ड में। हियर आई हैव गिवन लिंक ऑल्सो। बोर्ड ऑफ स्टडीज, लास्ट स्लाइड। बोर्ड ऑफ स्टडीज में एज अ फैकल्टी आप हो सकते हो। वीडियो लेक्चर्स के लिए आप रिकॉर्डिंग के लिए जनरली पर आवर रिकॉर्डिंग का 6,000 रुपीज है जो हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे मॉड्यूल का। तो आपकी वॉइस अच्छा है तो आप मॉड्यूल की रिकॉर्डिंग के लिए भी इम्पैनल कर सकते हैं। रिव्यू जो हमारे स्टडी मॉड्यूल का रिव्यू करना रहता है, कंटेंट डेवलप करना रहता है, क्वेश्चन बैंक जो देने रहते हैं, एमसीक्यू डेवलपमेंट का काम रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएमसीएस और उसकी फैकल्टी के अलावा भी ये कुछ एरियाज है जो बोर्ड ऑफ स्टडीज में अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप इम्पैनल कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो।
कैपिटल मार्केट अगेन जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं, जनरली 1 घंटे का आपका जो अवेयरनेस प्रोग्राम के 5000 रुपीज है, जो ब्रांच के थ्रू भी दूसरे एरियाज में सेबी के साथ ये रिव्यू रहते हैं। और सर्टिफिकेट कोर्स आई हैव ऑलरेडी कवर। और ये जो स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ट्रेड सर्विस एंड WTO की कमिटी है, उसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इंदौर में रह के कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आप जनरेट कर सकते हो, एंटायर पब्लिकेशन ई बुक ऑन क्विक इंसाइट ऑन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, कौन सी पर्टिकुलर कंपनी में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, मिडिल ईस्ट में क्या स्टेटस है, यूएस में क्या है, यूके में क्या है, ऑल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी वी हैव कंपाइल्ड इन दिस पब्लिकेशन। एंड सेकेंड पब्लिकेशन स्पेसिफिकली सिर्फ आउटसोर्सिंग का है, अकाउंटिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, पेरोल, रिकंसिलेशन, जितने टाइप के आउटसोर्सिंग है, आपके एक लैपटॉप के साथ सर्टेन सॉफ्टवेयर के साथ ये सर्विसेज आप ग्लोबली दे सकते हैं। एंड जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को वो प्रमोट कर रहे हैं, उसको चैंपियन सर्विस में भी उन्होंने ऐड करा है। तो सर्टेन फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे इम्पैनलमेंट के भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और सर्टेन जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड रिक्वायरमेंट रहेगा वो इस पब्लिकेशंस में आपको पूरा इसका दिया हुआ है, तो यू कैन यूज दैट पब्लिकेशंस। और ये हमारे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का अपना खुद का ICI का CA कनेक्ट सर्च इंजन है। आफ्टर डिसाइडिंग कि आप नेटवर्क लेना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट फॉर्म बनाना चाहते हैं, आपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस डेवलप करी है, GST कंसल्टेंसी, आर्बिट्रेशन, रेरा, कोई भी प्रैक्टिस, तो आप ये CA कनेक्ट में अपने आप को इम्पैनल जरूर करिए, बिकॉज इसमें आप आपकी टॉप 10 एक्सपर्टीज एरियाज डाल सकते हैं कि यू आर इन आर्बिट्रेशन, आप फॉरेंसिक में हैं, आप इंटरनल ऑडिट में, आप GST सर्विसेज देते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप अपीलेट में एक्सपर्ट है। ये पूरी सर्विसेज स्पेसिफिकली सभी लोग मेंशन कर सकते हैं, अपनी फर्म की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। और जो आउटर वर्ल्ड रहेगा, स्टेक होल्डर रहेगा, तो एक सर्च डालेंगे कि इंदौर में मुझे इंटरनेशनल टैक्सेशन सर्विस लेनी है, तो थ्रू दिस CA कनेक्ट सर्च इंजन पोर्टल पूरा डिटेल आ जाएगा 1 से 10 फर्म का कि ये फर्म जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो ये CA कनेक्ट सर्च इंजन पोर्टल 7th और 7th को हम लोग पूरा ऑपरेटिव इसको कर रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो अपलोड योर डिटेल, एंटायर डिटेल ऑन दिस सर्च इंजन पोर्टल। जैसा आपने देखा होगा आजकल जो अर्बन क्लैब, BNI वगैरह हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कनेक्ट के थ्रू जो ग्लोबली सभी लोग इस CA कनेक्ट पोर्टल को रेफर करेंगे, हम IFAC वगैरह सब में ये हमारा CA कनेक्ट जो सर्च इंजन पोर्टल है वो मेंशन करने वाले हैं, तो आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। तो डिटेल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी टुडे आई डिडंट कवर, but so many things I have covered. So dear members, as such, it is high time for Indian Chartered Accountant to grab the opportunities unfolding in the garb of challenges with the spirit of learn, unlearn and relearn in tune with times. So design your own practice. The list is endless. And I look forward to working with all of you and invite your ideas to take up more constructive initiative for the development and growth of our member. I shall always be available for any guidance, discussion, suggestions related to practice management, practice development, about certain emerging areas of practice. Always any member can connect me. I will definitely share everything related to what are the professional opportunity available, what are the platforms available. So once again, I convey my deep sense of gratitude to Indore branch for giving this opportunity to interact with you all. So thank you very much. Now we can take up questions from our members. Thank you so much, ma'am, for such a nice presentation. Your way of presentation is always very fruitful to the members. Now we have some questions from the various members. One by one we can take. Run a business through his HUF. Ma'am, your voice is not. एक बार repeat करेंगे?
Can a CA run a business through his HUF? नो नो नो, HUF के मैंने 4 ही मॉडल जो बताया ना, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP, ये 3 मॉडल के अलावा और प्रोप्राइटरी, ये 4 के अलावा प्रैक्टिस नहीं, मतलब जो हमारी ऑडिट और वो सर्विस है वो नहीं कर सकते, बिजनेस तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। और जो इनहेरिटेंस, पार्टीशन, उसके कारण यदि HUF कोई बिजनेस करता है तो लिमिटेड पर्पस आप उसमें मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन इंस्टीट्यूट से लेना रहेगा, और आफ्टर दैट परमिशन उसके बाद भी अटेस्ट फंक्शन नहीं कर सकते। दिस इज द स्टेटस। मैम नेक्स्ट इज हाउ टू रजिस्टर फॉर नेटवर्क। थ्रू Is it SS, necessary to register as a network through SSP portal or offline registration? ऑब्वियस, जैसे आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं SSP पे, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके ऑथोराइज पर्टिकुलर जो पार्टनर ऑथोराइज है उनका आपको मेंशन करना रहेगा, स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। Okay, ma'am. Next is whether an COP holder can start separate consultancy company with non-CA member. मल्टीडिसिप्लिनरी कल ही हमको अलाउड हुई है मिनिस्ट्री से, और अब हम लोग ये विथ अदर मतलब प्रोफेशनल्स वी कैन डू दैट टाइप ऑफ कंसल्टेंसी कंपनी, बट स्टिल मे बी 1 month will take time because we will incorporate all regulations related to that, but present status is that ki ministry has already approved, institute has already passed, so just regarding that implementation formality will be there. Next is whether partner in CA firm can practice in his proprietorship practice also. मतलब फर्म में भी है और अपनी प्रोप्राइटरशिप, तो वो जो है एज पर RBI CANDAG गाइडलाइन है कि पर्टिकुलर एक फर्म में आपको फुल टाइम प्रैक्टिस नहीं बता पाएंगे तो 0 मार्किंग रहेगा। तो एज पर PDC, बिकॉज टुडे जो मैंने कवर वो पार्ट नहीं करा है, जो PDC मार्किंग, CANDAG, गवर्नमेंट ऑडिट और जो हमारे RBI के हिसाब से है, तो अकॉर्डिंग दैट वो पॉइंट ऑफ मार्किंग आपका 0 रहेगा, बिकॉज ऑफ फुल टाइम प्रैक्टिस किसी एक फर्म में आपको बताना जरूरी है। एज पर एथिकल कोई कंपल्शन नहीं है, यू कैन बी पार्टनर ऑफ दैट, बट एज पर RBI एंड एज पर CANDAG एंड एज पर अवर MEF गाइडलाइन वो आपको कहीं ना कहीं क्लैश होगा। Ma'am, next is whether the name of the network should consist of initials of firm name only, or we can वो जो choose. फर्म के लिए, हाँ, फर्म के लिए जो गाइडलाइन है वही गाइडलाइन, नेमिंग की गाइडलाइन नेटवर्क की भी रहेगी। Next is whether partner in CA firm can practice. We have already covered. Can we develop the networking on the basis of project work only, and after complete the task we Yes. move to our original share? यस, जॉइंट वेंचर में वैसे भी आप ओरिजिनल शेप में ऑलवेज आपका इंडिविजुअल प्रैक्टिस रहेगा। आप अलायंस सिलेक्ट करते हो फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आप वो प्रोजेक्ट के बाद अपना अपना अलग कर सकते हो, लाइक जॉइंट वेंचर होता है, तो ये फैसिलिटी आप कर सकते हो इनकॉर्पोरेट। इसीलिए समथिंग न्यू, मतलब आई वुड से कि काफी अच्छा, मतलब ये सब मॉडल्स है। Next is when as an individual practitioner enter into partnership, then his individual practice was not allowed. What is the provision now? सेम अभी जो दिया है ना, इंडिविजुअल प्रैक्टिस, देखिए पहले होता था जब हमारा कोड ऑफ एथिक्स या RBI ये सब का जो मैनुअल या रेगुलेशंस नहीं थे, उसके पहले बहुत सालों पहले सीनियर फॉर्म्स भी रहती थी, उनकी इंडिविजुअल्स भी रहती थी। इसी को मीट आउट करने को कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो वो नेटवर्किंग में आप इसका यूज कर सकोगे, ये वाले फीचर्स का। Next is when will the functionality of the networking will start on SSP portal? Started. नेटवर्क ऑलरेडी, अंकुश जी, ये जो नेटवर्क है ऑलरेडी देयर, 2005 से नेटवर्क है और 100 फॉर्म्स करीब रजिस्टर्ड है ICI में, तो बाकी भी उसमें कर सकते हैं, जस्ट अब मॉडल अलग अलग कर दिए। ऑल फीचर्स आर अवेलेबल, नेम ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल कि फॉर्म A में नेम अप्रूवल के लिए जाना है, पूरी फॉर्मेलिटी, रेगुलेशंस, वो सभी वहां पे अवेलेबल है। कौन कौन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज अवेलेबल ऑन SSP। Next is will it is possible to interchange between 3 models with the consent of the majority of the members? या ऑब्वियस, बट एट अ टाइम 1 मॉडल ही एग्जिस्ट रहेगा जिसका एक कोई फॉर्म पार्ट हो सकती है। क्वेश्चंस ओवर हो गए। Ma'am, I think we have covered all the queries and questions from the members.
The last one is, can we request the institute to include LLP in the corporate body? नहीं, आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी पार्टनरशिप भी कंसल्टेंसी के लिए जो मैंने लिस्ट दी है उसमें कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। इशू इंडिविजुअल और एलएलपी और पार्टनरशिप में है बिकॉज आपकी जो रिसिप्ट्स है तो सम एक्सटेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जो पीडीसी आता है तो अलाउेबल सर्विस के कारण हम लोग उसको रिकनेक्ट जरूर कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट आपको ये है कि हाँ बिकॉज ऑफ दैट इज अलाउेबल। आप जो हमारी कंसल्टेंसी सर्विस सेक्शन 224 और जो लिस्ट मैंने पीपीटी में मेंशन करी दैट इज अलाउेबल। वो तो कंपनी एक स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि फैमिली भी उसका पार्ट हो सकती है और आप मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं, तो स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट। मैम, हाउ टू रजिस्टर मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म? वही एसएसपी पोर्टल लाइक हमारी फर्म है उसके हिसाब से रहेगा। मॉडलिटी वी आर फ्रेमिंग मॉडलिटी फॉर दैट, सो जस्ट यू कैन स्टार्ट योर प्लानिंग एंड वर्किंग एंड एसएसपी यू विल गेट दैट फीचर्स। बिल्कुल, yesterday we have received permission from MCA. Next is CA is in practice and his father HUF is in business. If father dies and now his son who is a CA in practice becomes a karta of HUF, whether HUF can continue business? No, प्रैक्टिस के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बट वो जैसी उनकी पैसिव इनकम है, फॉर एग्जांपल सर्टेन इन्वेस्टमेंट है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, एफडी है, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आ रहा है, लिमिटेड पर्पस कर सकते हैं, बट स्टिल परमिशन इन एनी केस यदि आप एचयूएफ के पार्ट है बीइंग एज अ कर्ता मेंबर और व्हाट एवर मैटर बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ फैमिली मेंबर, आपको इंस्टीट्यूट को जरूर परमिशन लेना है इन एनी केस। जो भी आप एचयूएफ का पार्ट है दैट इज कंपल्सरी। और उसके अलावा एक्टिव इनकम के लिए नहीं अलाउड है विद प्रैक्टिस, बट पैसिव के लिए अलाउड है। आई वुड लाइक टू वेलकम विमल जैन सर। सर मोस्ट वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Welcome, Vimal sir, on behalf of Indore branch. Thank you. My pleasure. My pleasure. My pleasure. Then one or two more questions we can take. One is whether practicing chartered accountant become director in a company non-executive, as a non-executive director. As an independent director, I think in a business, in a company, in a private company, our member can be simpliciter or independent director. There is no issue. Only participation in meeting that is allowable. हमारे मेंबर हो सकते हैं इन एनी कंपनी, डायरेक्टर हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, बट वो एग्जीक्यूटिव एमडी नहीं हो सकते। और प्रोविजंस एक ये भी ध्यान रखना, यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर होते हैं तो 2 साल तक आप उस पर्टिकुलर ऑडिट नहीं ले सकते उस कंपनी का, और यदि आप ऑडिटर है तो उस कंपनी में 3 साल तक डायरेक्टर नहीं हो सकते। वो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। Okay. One last question when we are taking, is networking, not merger, between two firms also recognized in CAG and RBI? If yes, what effective date will be considered? नहीं, मैं समझी नहीं उसमें, क्योंकि नेटवर्क जो है वो लीड फर्म इम्पैनल कर सकती है, बाकी जो हमारी इम्पैनलमेंट का स्टेटस है उसमें उनको इंडिविजुअल फर्म्स को ही करना है जो ऑडिट का है। बट इन अदर एरिया आउटसाइड दैट पर्टिकुलर इम्पैनलमेंट पीडीसी आउटसाइड में वो लोग कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एओपी के फॉर्म में इम्पैनल दे सकते हैं, वर्क ले सकते हैं। So, thank you so much, ma'am, once again for taking out all the queries of the members, and I think all members are fully satisfied with your answers. So once again, on behalf of Indore branch, as a part of Indore branch, as a host and as a hosting branch committee member, I again thank you so much for joining us.